Okay, students, now we are going to understand what are borrowed funds. Borrowed funds are all those funds which we have raised from third parties, and these are for a limited time period and are treated as loan for an organization. These loans are sometimes secured with the guarantee from the assets, means the assets are used as a guarantee to safeguard the interest of the people who have lent the money to the company concerned. And sometimes it is that the rate of interest is high, but and the company's credibility is also high, but the money which has been given by the investor is not safeguarded by any form of guarantee. So those assets, those loans which are being safeguarded by any form of guarantee, they are known as your secured loans or secured borrowed fund, whereas those loans or the borrowed fund which is not being safeguarded by any form of guarantee, that is considered as unsecured borrowed fund or unsecured loans. Now in borrowed fund we have various types of borrowed funds. One is debentures, then there are commercial loans, then there are long term loans. Commercial loans are generally of a short term or short term to medium term loan. Okay. Then there are long term loans. Okay. Then there are public deposits. Then there is a trade credit. Then there is a intercorporate deposits are there. ICDs are there. So these are the some of the aspects. Means we have debentures. Second one is your long term loans. Okay. Then there is your commercial loans. Which are short term and medium term. Then there is public deposits. Okay. Then there is your trade credit. Okay. And then there is ICD, which is intercorporate deposits. Okay. तो ये कुछ आपके पास डिपॉजिट तरह के borrowed fund हैं. We are going to discuss. Okay. So first type of borrowed fund which we are going to discuss is your debentures and bonds. Okay. First one is debentures and bonds. Okay. These are issued as per the provisions of section 230 of Companies Act 1956 or 2013. Okay. Fine. So debentures. So these, as per the said section, are stock or bonds or instrument which act as an evidence, okay, which act as an evidence of debt, okay, which act as an evidence of debt being
raised by the concerned company, okay, comma, this debt can be of secured nature, i.e. safeguarded by a charge or guarantee on assets, okay, or can be of unsecured nature, i.e. not being safeguarded by any गारंटी। तो ये आपके पास क्या है, बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है। ये स्टॉक या बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है विच एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ डेब्ट, ओके। ये डेब्ट आपका सिक्योर्ड नेचर का भी हो सकता है, मीन्स इट इज सेफगार्डेड बाय चार्ज और गारंटी ऑन एसेट्स, और इट इज ऑफ unsecured nature, means not being safeguarded by any guarantee, okay। तो ये आपके पास है पहला एस्पेक्ट विच इज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ओके। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के बारे में इन्होंने डेफिनेशन दी है। Thus these debentures are issued under the common seal of the company, ओके। ये इस पे कॉमन सील होती है विच स्पेसिफाइज दैट द होल्डर, द डिबेंचर होल्डर हैज़ accepted the terms and conditions on which these debentures have been issued, ओके। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसमें आपको वो एक्सेप्ट किया, उस स्टैम्प का मतलब ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन इसमें स्टेटेड हैं और वो उसको इनको कंसिडर किया जाता है, मतलब वो कंपनी की तरफ से स्टैम्प्ड है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन पे हम आपको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। ये इसकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा, ये इसकी सिक्योरिटी होगी और इस पे इतने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और वो सारी कंडीशंस को कंपनी स्टैम्प करके आपको हैंड ओवर करती है। एंड दैट स्पेसिफाइड द इंस्ट्रूमेंट इज़ legally accepting these terms and condition which you have entered into with the company when you have invested a particular amount of fund in that particular company। तो ये आपके पास डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स का सिस्टम है, ओके। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट फीचर इज इट इज ए बोरोड फंड। Borrowed fund means it is not a permanent fund, i.e. it has to be repaid to third party, ओके। ये ऑनर का फंड नहीं है, ये किसका है, थर्ड पार्टी का है। एंड इट इज नॉट ए परमानेंट, इट हैज टू बी पेड टू थर्ड पार्टी along with interest, okay, at the time of maturity, ओके जी। तो ये बोरो किया है, आपका अपना पैसा नहीं है, इसको पैसे को वापस करना है
और विद इंटरेस्ट वापस करना है जब भी इसकी मैच्योरिटी टाइम आ गई। तो ये सबसे पहला फीचर है इसका। सेकंड इज दैट पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, सो another important feature is in this interest is paid either monthly, 6 monthly, annually, okay, as agreed। तो जिस तरह से आपको एग्री किया है कि साल भर के बाद इंटरेस्ट लगेगा या हर महीने इंटरेस्ट लगता जाएगा और ऐड ऑन होता जाएगा, या हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा और ऐड ऑन होता जाएगा, तो ये रेगुलर इंटरवल्स के बाद इंटरेस्ट पेमेंट होती है और वो ऐड ऑन होती जाती है। ये आपको साथ ही साथ पे आउट नहीं होता है, ये ऐड ऑन होता चला जाता है। अब मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट लगाना है या 6 पे या एनुअल पे, ये डिपेंड करता है कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे आपको उसमें बोरोड डिबेंचर्स आपसे रेज किए हैं। तीसरा है इंटरेस्ट इज कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, the another interest on these is a charge, okay, and has to be paid in all circumstances, i.e. प्रॉफिट और लॉस। चाहे फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, चाहे फर्म ने प्रॉफिट लॉस सफ़र किया है, ये चार्ज है कंपनी के ऊपर और ये इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है हर कंडीशन में। दैट इज द अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बोरोड फंड और डिबेंचर्स। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज another important feature is no voting rights। Since this is not an owner's capital, okay, fine, and is a fund which has been raised with an assurance that interest and principal amount will be paid in every condition, okay, thus disqualifies its hold on company, okay, with respect to vote regarding decisions, okay, decisions in the company, okay। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या तो आप
रिस्क फेस करो और कंपनी को चलाओ, तो आप डिसीजन मेकिंग में पार्ट लो। दूसरा काम है, आपने पैसा दिया और आपने कहा नहीं नहीं मेरे को तो पैसा मेरा सेफ चाहिए, मेरा पैसा भी वापस मिलना चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। अरे भाई, आपको पैसा भी वापस चाहिए, इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए और आप डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट लेना चाहते हो, तो कंपनी ने डिसाइड कर दिया ओके, सिर्फ डिसीजन मेकिंग में वही लोग पार्ट लेंगे जिन्होंने मैक्सिमम रिस्क लिया है और जो कोई एश्योरेंस नहीं मांग रहे हैं पैसे को वापस करने की, और क्या कहते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं मांग रहे हैं, तो उनको तो हम हक देंगे फैसले लेने का कंपनी के लिए। बट जिन्होंने ये कह दिया कि नहीं मेरा पैसा सेफ होना चाहिए, इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, तो कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनीज एक्ट में डिसाइड हुआ कि नहीं, इन लोगों को हम वोटिंग राइट नहीं देंगे, कि आपको दोनों तरफ से मेवा नहीं मिलेगा, एक ही तरफ से मेवा मिलेगा। तो शेयर होल्डर्स को मेवा ये मिला है कि वो डिसीजन मेकिंग में अच्छा अपने पावर रखते हैं, और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको ये मेवा मिल रहा है कि they are getting their money safe and their interest is also safe, that is being paid. So they don't have the voting right on the basis of which the decisions with regard to policies of the company is being made. ये उनको हक नहीं दिया जाता डिवेंचर होल्डर्स को, ये एक और फीचर है। ओके, देन अनदर फीचर इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। These, unlike owners fund, had to be repaid after a certain time period. Okay, i.e. on maturity it has to be repaid. Okay, जबकि ऑनर्स फंड में पैसा कब दिया जाता है, जब कंपनी डिसॉल्व होती है, वाइंड अप होती है, तभी आपका पैसा वापस मिल सकता है, वो भी कोई गारंटी नहीं है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट इस कंडीशन में डिबेंचर्स में रिडम्पशन कंपल्सरी है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यू विल बी रीपेड और यू विल बी गिवन बैक द मनी, ओके, after a particular time period, and that time period is considered as the maturity time. So ये आपके पास another important benefit है redemption of debentures में। Next is these are charge on assets, i.e. if company fails to redeem debentures out of profits, then assets of company will be sold to pay back the money to debenture holders। तो ये इम्पोर्टेंट है, डिवेंचर होल्डर्स को पैसा वापस देना है तो क्या करेंगे, एसेट्स को बेच देंगे, और अगर प्रॉफिट्स में से पैसा नहीं मिला तो एसेट्स बेच के उस पैसे को रीपे कर देंगे। तो ये आपके पास है बोरोड फंड, फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। ओके, अब हम चलते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिवेंचर्स। Okay, so the merits of debentures is, first is these are ideal for
safe investors. Okay. So those investors who don't want to take the risk and they want their principal amount safe as well as their interest also safe, they should only invest money into the debentures. But those who want to have to bear the maximum risk as well as want to earn a higher rate of return, ये फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न नहीं चेंज होगा चाहे प्रॉफिट्स आपके बढ़ते चले जाएं। बट जो लोग अपने आप को सेफ गार्ड रखना चाहते हैं, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को, अपने इंटरेस्ट को, वो इन डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करें। बट जो लोग अपने पैसे को के ऊपर रिस्क लेने को तैयार हैं और ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए जा रहे हैं, वो इक्विटी मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करें। सबसे पहला फीचर ये है और सबसे पहला मेरिट ये है डिबेंचर्स का कि ये आपका पैसा सेफ रखता है, इंटरेस्ट भी सेफ रखता है, चाहे लॉसेस हों चाहे प्रॉफिट्स हों, कुछ भी कंडीशन हो, ये आपके पास एक बेनिफिट है कि दिस इज़ फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट इट टू बी सेफ, मनी टू बी सेफ। सेकेंड इज नो लॉस ऑफ कंट्रोल। Okay, these are beneficial for the company also because company will not lose its control over the voting rights. डिवेंचर होल्डर्स को पैसा लगाने का मौका दिया, उनको कह दिया ठीक है आप पैसा लगाओ, आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट आपको कोई वोटिंग राइट नहीं है। जैसे ही उनके हाथ से वोटिंग राइट ले लिया तो कंपनी का जो कंट्रोल है वो उन्हीं के हाथ में रहेगा, ऑनर्स का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा, वो लिक्विफाई नहीं होता है। चाहे आप कितना भी लोन उठा लो मार्केट से, तो लोन वाले आपको वोटिंग राइट के ऊपर कोई हक नहीं जमाते हैं। तो जो कंट्रोल है, क्योंकि कंट्रोल किनके हाथ में रहता है, जिनके पास वोटिंग राइट होता है, और अगर वोटिंग राइट छिन जाए तो कंट्रोल कम हो जाता है। तो डिबेंचर होल्डर्स से आपको ये खतरा नहीं है, आपका जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर वो लूज़ नहीं होता। इसलिए कंपनीज प्रेफर करती हैं टू रेज फंड्स थ्रू डिबेंचर्स रेदर देन गोइंग थ्रू इक्विटी मार्केट, क्योंकि इक्विटी मार्केट के थ्रू आपका कंट्रोल कम होता है कंपनी के ऊपर। ओके, तीसरा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ये पैसा कितनी भी टाइम के लिए रेज कर सकते हो, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और इसे आप रीपे करके अपने ऊपर जो ओवर कैपिटलाइजेशन होने का खतरा है उसको कम कर सकते हो। बट अगर आपने इक्विटी कैपिटल के थ्रू पैसा रेज किया, वो परमानेंट पैसा होता है और वो कंपनी में अपनी प्रेजेंस रखता है चाहे जब तक कंपनी चलेगी, तो उससे ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसके साथ कंपनी को लॉसेस होने के भी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसका टेन्योर फ्लेक्सिबल है, आप इसको प्री मैच्योर शेयर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। ओके, अगर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हों, अगर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दे रखी तो वो नहीं कुछ कर सकते। अगर 5 साल का फिक्स टेन्योर है तो 5 साल के बाद ही आप उसकी मैच्योरिटी में उसकी पेमेंट कर सकते हो, या उनके शेयर्स कन्वर्टेबल उसमें डिवेंचर्स में फॉर्मुलेट करके शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसी टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे हो वैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। बट यहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये पैसा परमानेंट नहीं है, ये पैसा टेम्परेरी है, बिजनेस में आया, आपको हेल्प की, काम में आपके हेल्प की, और जब आपको लगा कि नहीं अब मेरे को और पैसा ये नहीं चाहिए, सो यू विल रीपे दिस फंड बैक टू द इन्वेस्टर्स एंड यू विल बी सेटिंग ऑफ योर बर्डन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि यहाँ आप अपने फंड्स को वापस देकर जो ओवर कैपिटलाइजेशन का आपके ऊपर बर्डन आने के चांसेस होता है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। फिर है ये इकोनॉमिकल होते हैं। ओके, रेजिंग ऑफ फंड्स थ्रू डिबेंचर्स इज इकोनॉमिकल।
ओके, लेस कॉस्टली हैं। इसमें आपको वो उतनी लीगल प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती जितनी इक्विटी शेयर होल्डिंग में करनी पड़ती है। तो यहाँ आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट का बर्डन है, फिक्स्ड बर्डन है, तो वो भी आपका क्या है, टैक्स डिडक्टेबल है। जैसे आप डिविडेंड पे करते हो तो डिविडेंड जो पे किया जाता है उसका टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता हमें, उस पे हमें टैक्स रेदर पे करना पड़ता है। और जबकि जो आपके इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ओके, एक तो आपने उनको दे दिया, और जो टैक्स है वो आप अपने प्रॉफिट में से नहीं देते हो, जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हो उसके ऊपर टीडीएस इकट्ठा करते हो, और वो टीडीएस किसके पास डिपॉजिट करा देते हो, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा देते हो। मतलब एक साइड तो आपने इंटरेस्ट दे के एक्सपेंस ट्रीट कर लिया तो वो प्रॉफिट आपका कम हो गया, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी कम हो गई। दूसरी तरफ जो आपका टैक्स बना उस डिबेंचर, उस अमाउंट के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट के रूप में पे किया था, उसका टैक्स भी किससे कलेक्ट करते हो, डिबेंचर होल्डर से कलेक्ट करते हो, आप अपनी पॉकेट से नहीं पे करते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए ये आपके लिए एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर, जिसमें जब भी आप डिविडेंड दोगे तो डिविडेंड तो दोगे ही दोगे, उसके ऊपर टैक्स तो अब भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट के ऊपर तो जो टैक्स दे रहे हो वो तो देना ही पड़ेगा, डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न है वाई वी प्रेफर डिबेंचर्स, बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकल, द इंटरेस्ट ऑन पेड ऑन डिबेंचर्स इज टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, तो दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पर कैपिटा अर्निंग्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का फ़ायदा भी बढ़ाता है, कंपनी के टैक्स लाइबिलिटी को भी रिड्यूस करता है, तो टोटल कॉस्ट जो है इसकी कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सुटेबल ड्यूरिंग अर्निंग्स। जब भी आपकी स्टेबल अर्निंग्स हो तब तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना है तो आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। बट अगर आप लॉसेस बियर कर रहे हो और उस टाइम आपने डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज किया तो आपके ऊपर डबल मार हो जाएगी, एक तो लॉस है और ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी बियर करना है, मतलब इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी बियर करनी है, तो लॉस बढ़ जाएगा। तो हमेशा डिबेंचर्स तब रेज किए जाने चाहिए जब आपकी अर्निंग्स स्टेबल हों, तब नहीं रेज करने चाहिए जब आपकी अर्निंग्स गिर रही हों। उससे क्या है, लाइबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज होती चले जाएंगी, तो बेनिफिट्स कंपैरेटिवली कम होंगे और लाइबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज करती जाएंगी। सो दैट इज़ दी अनदर रीज़न वाई डिबेंचर शुड बी ओनली रेज ड्यूरिंग द स्टेबल टाइम पीरियड। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर है टैक्स बेनिफिट्स, तो हमने डिस्कस कर लिया। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है कितना, 7 लाख रुपीस का। ओके, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 10%। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसके पास 14%। ओके, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये है 50 लाख। ओके, अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्या होती है, इट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। ओके, तो पहला केस मैं कहता हूं कि सिर्फ इक्विटी है, दूसरे केस में इक्विटी और डेट है। ठीक है जी, फर्स्ट केस ओनली इक्विटी एंड सेकेंड केस इक्विटी प्लस डेट।
ये आपके पास है। ओके, तो देखो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं हम, तो पहले केस में तो नील, क्योंकि डेब्ट की कोई है ही नहीं है। ओके, और जो लोन आपने उठाया हुआ है, लोन आपने लिया हुआ है 10 लाख का। ओके, तो लोन आपका मतलब डिबेंचर्स आपके कितने के हैं, यहाँ पे डिबेंचर्स कह देते हैं 10 लाख के। तो 10 लाख के ऊपर 10% कितना हो गया, 1 लाख। तो ये रह गया 6 लाख और ये रह गया। टैक्स का हम कह देते हैं कि टैक्स का बेनिफिट है, टैक्स लगता है 30%, किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। तो 7 लाख तो ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, ये था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब यहाँ से टैक्स का माइनस कर देते हैं लायबिलिटी। 7 लाख पे 30%, 2,10,000, और 6 लाख पे 30%, 1,80,000। तो ये कितना रह गया, 4,90,000। ओके जी, और इसमें कितना रह गया, 4,20,000। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पर शेयर कितना है, 10 रुपीज ईच। ओके, देखो पहले केस में आपने सिर्फ इक्विटी लगाई थी 7 लाख की, सॉरी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई थी 50 लाख की। फाइन, 50 लाख में पूरे के पूरे शेयर्स थे, तो 50 लाख को 10 से डिवाइड करो, 5 लाख शेयर्स हो गए। तो 4,90,000 को हमने 5 लाख से डिवाइड कर दिया। ईपीएस यहाँ पे है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके जी, तो 50 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो शेयर कितने हो गए, 5 लाख के पहले केस में। ओके, तो 5 लाख से डिवाइड किया तो ये आ गया 9 से 45 और 40, 98.98 पैसा पर शेयर आप कमा रहे हो। ओके, 1 रुपये से थोड़ा कम कमा रहे हो। अब दूसरे केस में आ जाओ, 4,20,000 की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड थे 50 लाख, उसमें 10 लाख के क्या है, डेब्ट। ओके, डिबेंचर, तो मतलब कैपिटल इक्विटी कितनी हुई, 40 लाख की। अब 40 लाख मतलब पर शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर थे, 4 लाख थे। तो इसको 4 लाख से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 1 रुपये 5 पैसे। तो ये है आपके पास ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि जब भी आप डिबेंचर्स यूज करोगे, और इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन, ये ज़्यादा होनी चाहिए किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होगी, और अगर आप डिबेंचर्स ज़्यादा यूज़ करते हो कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो आपकी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेनिफिशियल होगी, आपकी अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव करेगी। ओके, तो ये बेनिफिट है हमारा डिबेंचर्स को यूज़ करने का, कि डिबेंचर्स में आप इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट आपका है वो कम तो हो जाता है, मगर कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से उसकी अर्निंग इंक्रीज़ कर जाती है। और ये तभी इंक्रीज़ करती है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस केस में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, डिबेंचर्स की यूटिलाइजेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा है डिबेंचर्स को एम्प्लॉय करने का। ओके, तो ये तो थे मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। अब हम चलते हैं डीमेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स की। Demerits of debentures है, first thing is it is a permanent burden.
आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी हर हालत में। इट इज़ अ चार्ज ऑन द कंपनी एंड यू हैव टू पे द इंटरेस्ट वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट्स और यू आर सफरिंग लॉसेस। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको उसके प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे आप अपने एसेट्स बेचकर पेमेंट करो। तो ये एक परमानेंट बर्डन है, ये एक प्रॉब्लम है कंपनी के लिए। उस कंडीशन में जब कंपनी लॉसेस सफ़र कर रही है एंड इट इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू रीपे द मनी बट हैज़ टू बियर दिस बर्डन इन एवरी कंडीशन, that is why this becomes demerit or this becomes unuseful at times when the company is suffering losses. Okay, दूसरा है adverse impact on borrowings। अगर आपने लोन ज़्यादा उठाना शुरू कर दिया तो आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में गिरनी शुरू हो जाएगी कि ये कंपनी हर दूसरी चीज़ के लिए लोन उठाती है। तो जब ये लोन की लायबिलिटी जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, आपकी डेब्ट इक्विटी रेशियो, एक वर्ड बोलते हैं हम डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी रेशियो होती है हमारे पास। ओके, अगर तो ये इक्विटी के बराबर आपकी चल रही है तो आप बड़े सेफ जोन में हो, कम है या बराबर है तो सेफ जोन में हो। इसकी मैक्सिमम रेंज है डबल द शेयर होल्डर्स फंड, मतलब इक्विटी के ऊपर, बट वो एक रिस्की सिचुएशन हो जाती है। तो जैसे जैसे इक्विटी से ऊपर डेब्ट की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है लोन और डिबेंचर्स की, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी बनती जाती है और ये क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करती है। और ये क्रेडिबिलिटी को इतना इफेक्ट करती है कि आप जब भी नेक्स्ट लोन उठाने जाओगे, एक तो मार्जिन आपका ज़्यादा क्रिएट किया जाएगा जिससे कि सेफगार्ड कर सके लोन प्रोवाइडर आपको अपने आप को। ओके, कि कहीं कंपनी डूब गई तो हम अपना लोन कहाँ से रिकवर करेंगे। सेकेंडली, आपको लोन अमाउंट कम दी जाती है और महंगा लोन दिया जाता है, या तो लोन महंगा दिया जाता है या लोन अमाउंट कम दी जाती है, जिससे कि जो लेंडर है वो सेफगार्ड रहे, मतलब उसके इंटरेस्ट सेफ रहें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जो आपके ऊपर इफेक्ट करता है। डिबेंचर्स जैसे जैसे ज़्यादा रेज करोगे वो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी को, लोन जितनी बार आपका, एक आजकल कहते हैं सिबिल रिकॉर्ड देखते हैं बैंक वाले, होम लोन देने के लिए या पर्सनल लोन देने के लिए या कोई भी लोन, तो वो देखते हैं सिबिल में इसने कितनी बारी लोन लिया और इसकी पेमेंट सिस्टम कितना स्ट्रांग है, वापस कितनी जल्दी पैसा देता है, कहीं डिफ़ॉल्ट्स तो नहीं किए। अगर आप डिफ़ॉल्टर हो कई केसेस में तो आपका सिबिल रिकॉर्ड गिरता जाएगा, तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होती है, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है मार्केट में, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बुरी चल रही है, आप पैसा वापस दे नहीं पा रहे हो, आप बार बार पैसा उठाते जा रहे हो, तो आपको लोन नहीं मिलेगा नया, एंड दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, वो हमने पहले एस्पेक्ट में ही कर दिया था डिस्कस। that you have to repay the money in all condition whether you are suffering in the losses or earning the profits। जब भी मैच्योरिटी आ गई तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट को वापस देना ही पड़ेगा। ओके, एंड देन अनदर इज इट इज a charge on assets। अब चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब ये है कि जब भी आप ये पैसा रेज करोगे आपको एक कुछ एसेट्स की गारंटी देनी पड़ेगी। अब जब जिन एसेट्स की आपने गारंटी दी है, जब तक इस लोन की रीपेमेंट नहीं हो जाएगी वो एसेट्स आपके फ्री नहीं होंगे, वो आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ना नया लोन रेज करने के लिए, ना उनको बेच सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो मतलब वो आपके एसेट्स अटक जाएंगे, फंस जाएंगे एक जगह पे। वो एक गारंटी दे दी है आपने, या तो लोन को रीपे करो तो वो एसेट्स आपको वापस मिल जाए। मान लो कि आपके पास ज़मीन का टुकड़ा था, आपने वो दिया और लोन ले लिया। ओके, अब आपको उस ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही है, मगर आप बेच ही नहीं सकते हो। पहले सरकार का लोन वापस करो, या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है या जिस इन्वेस्टर से लोन लिया है वो लोन वापस करो, तो वो लैंड फ्री हो जाएगी, एंड देन यू कैन सेल
एंड जैसे अब ये तो कंडीशंस आपकी लक के ऊपर है कि आपने वो लोन रीपे किया, तो जब वो फ्री हुए एसेट्स, अब उनकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी मिली तो आपने वो बेच दिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ये चार्ज ऑन एसेट्स है। एसेट्स आर बीइंग यूज्ड एज ए गारंटी टू रेज डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट एंड till the debentures are being repaid, and these assets will not be free for usage by the company, and that is the another problem of debentures. Okay, अब हम आते हैं types of debentures के ऊपर। फाइन, पहले हैं secured डिबेंचर्स और दूसरे हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जिनमें आपने कोई एसेट की गारंटी दी है। इन केस कंपनी सफर्स लॉसेस एंड इज नॉट एबल टू रीपे द मनी out of its profits, then you can sell off its assets and use that money for repayment for the of the liability towards the debenture holders। ये है secured debentures। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसमें कोई गारंटी ऑफ एसेट्स नहीं है, आप कंपनी की क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे उसमें इन्वेस्ट करते हो क्योंकि कंपनी आपको बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो डिबेंचर्स जहां आपके प्रिंसिपल अमाउंट के लॉसेस होने के, पूरी की पूरे लॉस होने के चांसेस हैं, उस तरह के डिबेंचर्स को हम क्या कहते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। ये आपके पास दूसरा एस्पेक्ट है। फिर आ जाते हैं हम तीसरा, रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम से इशू किए जाते हैं। सिर्फ वही इंडिविजुअल उस पैसे को मैच्योरिटी के टाइम इन कैश करा सकता है, उसी के अकाउंट में जाएगा और किसी को वो नहीं पैसा मिलेगा। और बियरर डिबेंचर्स वो होते हैं whosoever is the holder of those debenture, those instrument, he is able to encash them from the company concerned। ओके, तो ये आपके पास है फाइन। और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में अगर आपको किसी और को ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र डीड आपको साइन करनी पड़ेगी, तभी उस दूसरे बंदे को पेमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। मगर इसमें क्या है, जिस किसी के पास है ओके, उस बंदे को इसका इंटरेस्ट और इसकी प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखती कि ये वाले डिबेंचर्स हमने किसको इशू किए थे। तो ये है बियरर डिबेंचर्स। ओके, देन देयर इज ए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। Okay, convertible debentures are those debentures which at the time of maturity, if the company has given you an option that you, if you want to get them converted into shares or any other type of instrument which the company proposes for, that can be easily converted into that type of instrument। मतलब शेयर्स में कन्वर्ट करना, बॉन्ड्स में कन्वर्ट करना, तो जो भी एक प्रोपोजिशन कंपनी दे रही है, तो इसमें एक आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप कैश ना लेकर कंपनी के अंदर ही री इन्वेस्ट कर देते हो इन अनदर फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी। बट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स हैं जिसमें एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यू विल ओनली बी मेड द पेमेंट इन कैश एंड यू कांट गेट योर डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्मेट। तो ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं। ओके, फिर आपके पास है डीप डिस्काउंट और जीरो कूपन डिबेंचर्स। ओके जी, जीरो कूपन डिबेंचर मतलब फेस के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट आपका मिला है, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा जाता। इसे डीप डिस्काउंट डिबेंचर्स भी कहते हैं या ज़ीरो कूपन डिबेंचर्स भी कहते हैं। पहली बात तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फेस के ऊपर नहीं लिखा जाता इंस्ट्रूमेंट के।
अब यहाँ पे फिर इंटरेस्ट कैसे मिलता है, ये बड़े प्रॉब्लम की बात है। इंटरेस्ट इस तरह से है कि ये जो डिबेंचर्स हैं ये फेस वैल्यू मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किए जाते हैं। ये आप 10 रुपये का डिबेंचर है, आप 10 रुपये के डिबेंचर को 9 रुपये 50 पैसे पे भी इशू कर सकते हो, आप उसे 9 रुपये पे भी इशू कर सकते हो, आप उसे 8.5 रुपये पर भी इशू कर सकते हो। इशू प्राइस मतलब आपके डिस्काउंटेड है 50 पैसे, 1 रुपया या 1.5 रुपया। बट आप जब उसे रिडीम करोगे, मैच्योर कराओगे, तब वो 10 रुपये के हिसाब से वापस मिलेगा। मतलब ये जो गैप है 50 पैसे का, 1 रुपये का या 1.5 रुपये का, ये इंटरेस्ट है। ओके, इंटरेस्ट है मतलब हर 10 रुपये के पीछे आपको 1.5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है या 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो 1 रुपया होता है 10% ऑफ 10 रुपये और 1.5 रुपया होता है 15% ऑफ 10 रुपये और 50 पैसे होता है 5% ऑफ 10 रुपये। तो इस तरीके से आपको जो बेनिफिट है वो फेस के ऊपर नहीं लिखा जाएगा। जितने डिस्काउंट पे आप इस डिबेंचर को खरीदोगे वही आपका बेनिफिट होगा। इसीलिए इसे डीप डिस्काउंट या ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। इसके फेस के ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, बट जो डिस्काउंटेड बेनिफिट आपको मिलता है, डिस्काउंट जितने पे आपने खरीदा है वही आपका बेनिफिट है, इसलिए इसे ये डिबेंचर्स कहा जाता है। ओके, थैंक यू।